emission of the electron from the metal plate when the particular type of light is incident on it. The emitted electrons are called as photon, and effect is called as the photoelectric effect, isn't it? And these electrons are called as the photoelectrons. Due to this one, the current which is in form or the current which is flow, it is called as the photoelectric current. Now these are the electrons. ये electrons emit होते हैं, तो इनको charge भी रहेगा, इनको mass भी रहेंगी. तो ये जो electron emit हो रहे हैं, इनके charge to mass ratio के लिए एक equation दी गई है, and that is called as the E/m of the photoelectrons. And for that one, the scientist Richardson has given one equation. Let me share my screen here first. Can you see my screen, please, all of you? आप स्क्रीन देख रहे हैं मेरा? All of you can see the PPT which I have display on the screen. Yes, sir. So see here, this is the second lecture of the photoelectric effect, isn't it? And for that one, we are going to see our article of this particular. What is the objective of this lecture? Why we have arranged this meeting or this lecture? In this lecture, we are going to see the Lenard method. Lenard is the name of the scientist, to determine E/m. What do you mean by E/m? Charge to mass ratio of electrons. In this we will see what is the introduction of this one, experimental setup of this experiment, and derivation of the E/m, that is charge to mass ratio. See here, Lenard's method. Lenard एक साइंटिस्ट का नाम है. E/m, E यानी कि चार्ज, m बोले तो mass. E/m of the photoelectrons. What do you mean by photoelectrons, please? Anybody, please unmute and tell me the definition of photoelectrons. Please. Photoelectrons किसको बोलते हैं, please? Photoelectrons are nothing but the electrons which are emitted in the photoelectric effect from the metal plate. Am I correct? Isn't it? And now these electrons which are emitted, they have certain mass and they have certain energy, and the ratio of that charge to mass, that E/m, that we are going to determine in this particular lecture today. And to determine this charge to mass ratio, scientist Lenard has given one method, and that method it is called as Lenard method for the determination of E/m of the photoelectrons. Now this is the systematic diagram of the E/m determination. This is the apparatus. Apparatus is consisting of 3 to 4 apparatus. कौन कौन से हैं? ग्लास ट्यूब. आपको दिख रही है बड़ी ग्लास ट्यूब, ये जो मेरा कर्सर देख रहे हैं आप प्लीज, ये जो रेड कलर से जो पूरी ट्यूब दिख रही है, दिस इज द ग्लास ट्यूब. ये अंदर से इवैक्यूएटेड है, यानी कि इसको कोई एक मेटल जो है तो इस तरह से इवैक्यूएटेड किया हुआ है, अंदर से लिपा हुआ है. इट इज कॉल्ड एज इवैक्यूएटेड. साइड ट्यूब टी, उसको साइड से एक ट्यूब लगी हुई है टी. अंदर कैथोड एक मेटल है, कैथोड. एनोड आप जानते, इट इज डिनोटेड बाय सी. विंडो इज देयर, डब्ल्यू. एनोड इज देयर हियर, दिस वन इज द एनोड. कैन यू सी माय कर्सर ऑन द फिगर प्लीज? एनीबडी अनम्यूट एंड टेल यस और नो. आर यू गेटिंग प्लीज? अबीर फातिमा, आर यू गेटिंग? Yes, sir. So are you seeing my cursor? Now another are the दूसरा इसका हिस्सा है प्लेट P1 and P2. These these are the electrodes. Can you see these electrodes? P1 and P2. Now what happened? Apparatus is consisting of the glass tube G, which is evacuated. This glass tube जो कि evacuated है, which has the window. ये ग्लास ट्यूब को एक विंडो है, isn't it? कौन सी विंडो है? टी, जिसको बंद चालू कर सकते हैं, जैसे कि हमारी टूटी रहती नल की. दिस इज द विंडो टी. देयर इज अनदर विंडो डब्ल्यू. सी हियर माय कर्सर. थ्रू दिस विंडो यू कैन फॉल द लाइट ऑन इट, यानी कि आप इस विंडो की मदद से लाइट गिरा सकते हैं. किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर, सी के ऊपर, isn't it? On that, through this window we can fall the light on the cathode. कैथोड सी. कैथोड सी किसका बना हुआ है? एक मेटल का बना हुआ है. कौन सा मेटल है वो? एल्यूमिनियम. किसके अंदर रखा हुआ है ये कैथोड? किसके अंदर है? प्लीज अनम्यूट वन ऑफ यू और टेल मी, किसके अंदर है ये कैथोड?
glass tube के अंदर, isn't it? And when the light from the window incident on this cathode C, then in the last period we have seen what happened with the cathode C. जैसे उसके ऊपर लाइट गिरती, उसके ऊपर कुछ पोटेंशियल रहता, वो अपने पास से क्या निकालता, चार्ज पार्टिकल निकालता। वो चार्ज पार्टिकल इस तरह से यहाँ से निकल के कहाँ जाते, इलेक्ट्रोड पे जाते। यहाँ दिख रहा है आपको इलेक्ट्रोड ए। इलेक्ट्रोड ए भी एक मेटल है, लेकिन उसको एक छोटा सा सुराख है। इलेक्ट्रोड ए इज ए स्मॉल पिन होल। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते इलेक्ट्रोड की तरफ जाते, इलेक्ट्रोड के होल में से निकल के वहां से थोड़े इलेक्ट्रॉन तो की तरफ जाते, थोड़े जो है तो किसके ऊपर जाके टकराते, पॉइंट P1 पे। पॉइंट P1 क्या है, इलेक्ट्रोड है ये, जो एक एडिशनल इलेक्ट्रोड है, ग्लास एक मेटल प्लेट है। अब इस मेटल प्लेट पे पहुंचने के बाद वहां से वो सीधा ना जाए, इस वास्ते यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाते, ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचने के बाद जो है तो सर्कुलर फिरे, और ऐसा फिर के किसके तरह, ये जो राउंड दिख रहा है सर्कल आपको, ये किसका रास्ता है, ये कोई राउंड नहीं है, बल्कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो डॉटेड से मैंने दिखाया है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन P1 के तरफ जाते। P1 पे जैसे ही जाते वो क्या करता, P1 जो है तो किससे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोमीटर E1 से जुड़ा हुआ है। ये दिख रहा है यहाँ पे आप इलेक्ट्रोमीटर। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के P1 के पास जाते, इलेक्ट्रोमीटर डिफ्लेक्शन बताता, जैसा आपका मोबाइल कैसा डिफ्लेक्शन बताता, या आपने गिलानोमीटर देखा होगा, वो डिफ्लेक्शन बताता घड़ी के कांटे की जैसा। पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन जो है तो P1 से लेके P1 पर नहीं जाना, बोल के यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है कि सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर रीचिंग टू द प्लेट P1 दे गेट राउंड अप, यानी कि वो गोल घूमते, और गोल घूम के जो है तो ऐसा घूम के जो है तो वो बजाय P1 के किसको जाके मिलते, एनीबॉडी अनम्यूट एंड टेल मी, कौन से प्लेट के ऊपर जाते, P2 के तरफ जाते। और जब P2 के तरफ जाते तो P2 किससे कनेक्टेड है, इलेक्ट्रोमीटर E2 से। तो इलेक्ट्रोमीटर जो है तो क्या बताता, वहां पे डिफ्लेक्शन बताता। लिहाजा ये P1 और P2 का डिफ्लेक्शन लिए, तो अब ये कितना डिफ्लेक्शन बताएगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता, कि 2 बताएगा, 4 बताएगा, 6 बताएगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा डिफ्लेक्शन, कि कितने इलेक्ट्रॉन उसको जाके पर सेकंड मिल रहे। एम ए करेक्ट? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उतना ज्यादा उन्हें डिफ्लेक्शन बताएगा। एम ए करेक्ट? आर यू गेटिंग प्लीज? Yes, So sir. see here, if the अब क्या करेंगे हम, now have you got the apparatus? एक बार फिर मैं बता दूं, it is consist of a evacuated glass tube G. Inside the glass tube there is the cathode C, anode A, small hole. There are the two metal plates P1 and P2. These are connected to the electrometer E1 and E2. Now the cathode is connected to the positive or negative terminal. That means you can give the any desired potential. आप इसको कैथोड को इधर से जो है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को लगा सकते हैं, यानी कि हम बोलेंगे कि कैथोड को आपने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, या कैथोड को आप इसके मदद से निगेटिव टर्मिनल को लगाएंगे बैटरी के, तो आप बोलेंगे कि हमने कैथोड को निगेटिव पोटेंशियल दिया। जो भी पोटेंशियल इसको देंगे उन्हें वैसा बनेगा। पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे इन्हें पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव पार्टिकल निकाल। कैथोड अगर पॉजिटिव पोटेंशियल है तो एनोड क्या रहेगा जी, एनोड क्या रहेगा, निगेटिव पोटेंशियल। याद रखिए कैथोड और एनोड दे आर ऑलवेज प्लेस्ड एट ए against potential. If C is at positive potential, then A will be at negative potential, and vice versa. Now the light is passed through the window C, window W. This is the ultraviolet light passed through this window and incident on the glass, on this plate C or on this cathode C, which is placed at any desired potential. Then what happens if the cathode, now see the function कैसे काम करता देख लीजिए। If the cathode C is given negative potential, यानी कि आपने कैथोड को निगेटिव पोटेंशियल दिया और इसको यहाँ से लाइट लगा दी, निगेटिव पोटेंशियल को लगा हुआ है और यहाँ से लाइट जाने के बाद चमक रहा है, तो लिहाजा इन्हें कौन से पार्टिकल इमिट करेंगे जी, नेगेटिव पार्टिकल्स। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय द कैथोड सी, जो किधर एक्सीलरेटेड होंगे, दे विल बी गेट एक्सीलरेटेड टुवर्ड्स द एनोड ए। एनोड ए क्या है, एक छोटा सा होल है, सारे के सारे सी से निकले हुए इलेक्ट्रॉन तो जाकर ए पर निकलेंगे, लेकिन ए में से कौन से पास होंगे, जिनकी एनर्जी ज्यादा रहेंगी, जो ताकतवर रहेंगे, जो ज्यादा एनर्जी से निकलेंगे, उन्होंने छोटे से होल में से पास होके किधर जाएंगे, they will, some of the electrons which are having the more kinetic energy will pass through the small hole through this A and they reach to the plate, which plate, P1, isn't it? And when they reach to the plate P1, electrometer E1 shows the deflection. Am I correct? क्योंकि E1 किसको लगा हुआ है, P1 को लगा हुआ है, isn't it? अब यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है,
मैग्नेटिक फील्ड यहाँ दिख नहीं रही है क्योंकि आपके पेपर के पीछे साइड से कैसी लगाई हुई है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिगर को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है। इसकी वजह से क्या हो रहा, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से गुजरते तो अपना रास्ता बदलते, आप पढ़ कर आए हैं 12th में। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड से ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल के इधर जा रहे थे, जैसे ही उनको मैग्नेटिक फील्ड आई, बजाय वो ऐसा सीधा जाने के किधर मुड़ गए, ये ऐसे हो गए। यू कैन सी ऑन द फिगर, ये ऐसे चले गए, टर्न कर दिया उन्होंने, थोड़ा सा राउंड ले लिया, सर्कुलर पाथ उन्होंने अपना लिया और सर्कुलर पाथ करके वो किसके तरफ चले गए, प्लेट P2 के तरफ चले गए, isn't it? Some of the electrons they get turns or get they deflected towards the plate P2 and when they reach to the plate P2, लेकिन प्लेट P2 जो है तो E2 को कनेक्टेड है, लिहाजा E2 क्या बताएगा इस मर्तबा, डिफ्लेक्शन बताएगा, isn't it? Have you got? Now इसकी वजह से क्या होगा, can you tell me, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगा इसकी वजह से क्या पता है जिन्हें इलेक्ट्रोमीटर क्या बता रहा, करंट बता रहा। काय की वजह से करंट आया जी E2 में, कौन जिम्मेदार है ये करंट के लिए, which factor is responsible for the production of the current at which was shown by E2, the electron which are emitted from this cathode C, am I correct? Yes, are you sir. getting please? Yes, sir. Yes, that means यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट बताने के लिए, लिहाजा यहाँ इलेक्ट्रिक करंट कम है या ज्यादा है इसका इन्हिसार उनके ऊपर है जो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद, यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिसाइड करेगी, am I correct? And now see here, this electric current which is passed या which is obtained या which is generated due to the production of this electron, it is then calculated by the scientist Leonard, and Leonard ने क्या करा, ये जो करंट और यहाँ इसके ऊपर C का पोटेंशियल, जैसे मैंने बताया ना, ये करंट किसके ऊपर जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन काय की वजह से निकले, C कैथोड की वजह से। कैथोड के ऊपर कितना पोटेंशियल है, कम पोटेंशियल है कि ज्यादा पोटेंशियल है, ये डिसाइड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले, कितने इलेक्ट्रॉन ए में से पास होके E2 के तरफ गए यानी कि P1 और P2 के तरफ गए। लिहाजा सारा दारो मदार इलेक्ट्रिक करंट का किसके ऊपर है, किसके साथ प्रोपोर्शनल है ये, इट इज डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल V which was given to the cathode C। एंड समझो अगर पोटेंशियल V जो कैथोड को दिया हुआ है वो अगर पॉजिटिव पोटेंशियल है, यानी कि आपने C को किसके मदद से लगा हुआ है, देखिए इधर एक बार, ये C अगर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल को लगाया, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को लगाए, यानी कि हमने C को कौन सा पोटेंशियल दिए, कौन सा पोटेंशियल दिया, अगर पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल दिए। अगर हमने C को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया तो करंट पास नहीं होगा, यानी कि क्यों, कि उतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो करंट जो है तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन उधर से निकाले और एनोड की तरफ जाए। लिहाजा उस वक्त जब इलेक्ट्रॉनिक उसके ऊपर से निकली और हाई पोटेंशियल दिया, हाई पोटेंशियल पॉजिटिव हाई पोटेंशियल बोले तो क्या, ये ग्राफ में देखिए आप प्लीज, आपको ग्राफ दिख रहा है यहाँ पर, कैन यू सी दिस ग्राफ हियर which I have shown? yes sir, ये अगर थोड़ी देर के लिए ये पोटेंशियल +10 है तो ये कम है क्या ज्यादा है, प्लस में ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल है नहीं, +7 है yes sir, ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल है, +5 है ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल है, तब तक भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। अब जैसे जैसे आप पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएंगे, सी हियर दिस ग्राफ, मैंने इस ग्राफ को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक्स एक्सिस में है पोटेंशियल ऑफ द कैथोड, काय में है गिनते इसको वोल्ट में, और y axis में है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। See here, when the positive potential was very high, +10, +8, +7, at that time there is no emission of the any electrons from the cathode। जब इमिशन ही नहीं है तो ए के तरफ जाने का सवाल नहीं, और जब ए के तरफ जाने का सवाल नहीं तो करंट का सवाल नहीं। तो करंट यहाँ दिख रहा है क्या कुछ आपको, 5 तक कोई करंट नहीं, 4 तक no, कोई करंट नहीं, 3 तक कोई करंट नहीं, अलबत्ता थोड़ा सा पोटेंशियल जब 0 के पास चला गया यानी कि +2, when the potential is decreases from positive, कहां से डिक्रीज कर रहे हैं इसको आप, पॉजिटिव से। पॉजिटिव से डिक्रीज करना मतलब क्या, +10 से उतारते 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 कहां लेकर आना उसको, नेगेटिव में, हाँ तो निगेटिव में भी +2 जब रहेगा, यहाँ पे देखिए आप ये जो +2 दिख रहा है कि अभी इधर दिखा ना आपको यहाँ, तो जब +2 पोटेंशियल रहेगा यानी कि डिक्रीज या लेस पॉजिटिव पोटेंशियल इज देयर एज +2, उस वक्त थोड़ा सा करंट इमिट होगा। यहाँ कितना दिख रहा करंट, वो ज्यादा उठा हुआ दिख रहा है क्या +2 के पास, नहीं, बहुत मामूली। अब जैसा +2 से कम करते नॉब नहीं करते अपना रेडियो का नॉब कैसा कम करते, आवाज वॉल्यूम कम करते आप,
वैसा पोटेंशियल कम कम करते आया, +2 यानी कि +2 +1 और उसके बाद यहाँ पे अब 0 V0 Zero. दिख रहा है। अब V0 के बाद से पोटेंशियल बढ़ना यानी कि करंट बढ़ना शुरू हुआ। Start. देख रहे हैं आप ये y एक्सिस पे क्या है, ये Sir. पर्पल कलर का है, ये पर्पल लाइन क्या बता रही है Cur- आपको? Current. करंट बता रही है। अब जब V0 मैक्सिमम हो गया यानी कि 0 हो गया, उस वक्त जो है तो आपका क्या हुआ, करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा, बढ़ते 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 गया, एक हद पर जाने के बाद यानी कि आप देखिए यहाँ पर उसका पीक आ गया। ये दिख रहा है कि मेरा कर्सर दिखता है आपको? Yes, sir. माय कर्सर प्लीज। अब यहाँ पर जाके बड़ा मुश्किल जो है -3 या -2 के पास जो है तो ये मैक्सिमम हो गया। अब इसके बाद आपने निगेटिव में बढ़ा इधर, यानी कि निगेटिव में क्या करे, +4 +5 करे, लेकिन अब उसके बाद करंट बढ़ रहा नहीं बल्कि कैसा बन जा रहा, देख रहे हैं आप, ये सीधा जा रहा है सर, यानी कि सैचुरेशन, यानी कि करंट शो फ्यू इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू द इनफ वेलोसिटी टू ओवरकम दी। तो लिहाजा ये जो पोटेंशियल है +2 वाला, इट इज कॉल्ड एज द रिटार्डिंग पोटेंशियल, या यू मे कॉल दिस एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। +5 तक तो कुछ आ रहा नहीं था, +4 तक कुछ नहीं आ रहा था, कहां से शुरू हुआ करंट दिखना? +2. +2 से। So that means this is called as the stopping potential, and from +2 to -2 there is the formation, there is the generation of the current, and after that one the current become saturated, and this current is called as the saturation current. लिहाजा रेनॉल्ड ने किसके किसके दरमियान जो है तो रिलेशन कायम करा। ये क्या है, ये y एक्सिस पे क्या था, Current. फोटो इलेक्ट्रिक करंट, Photoelectric और x current. एक्सिस पे क्या था, Potential of a cathode. यस, यानी कि पोटेंशियल ऑफ द कैथोड इज रिस्पांसिबल फॉर द जनरेशन ऑफ करंट, और वो ही बताएगा कि करंट कितना है, पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है, निगेटिव है तो कितना निगेटिव है, ये डिसाइड करेगा कि सैचुरेशन करंट सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना है और कहां तक जाकर उसके बाद करंट जो है तो सैचुरेटेड हो जाएगा। एंड देयरफॉर इफ द पोटेंशियल इज फर्दर डिक्रीज, करंट इज इंक्रीजेज। पोटेंशियल आपने कम करे, देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि पोटेंशियल आप कम कम करते जा रहे हैं, क्या हो रहा, करंट पोटेंशियल कम करे तो कम करे तो कैसा जा रहे हैं आप, +2 से +1 0, क्या हो रहा, करंट Current increases. increases, reaches to maximum, isn't it, near about Yes, sir. at minus something, and then it becomes reaches to maximum होता रहा। यहाँ पर करीब करीब अगर -20 पे देखे आप तो यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, इसके बाद फिर अब सैचुरेटेड हो रहा है, isn't it? यानी कि as the potential on the cathode is further decreased, current goes on increasing, reaches Increasing to maximum value. reaches to maximum for near about at -20, isn't it? And for that one, लिहाजा ये जो बढ़ते जा रहा करंट, इसको ये वहां पर ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो निकले कहां से थे, कहां से निकले इलेक्ट्रॉन, Cathode. कैथोड से Cathode. निकले, कहां पे पहुंच रहे, एनोड को पहुंच रहे, एनोड के Anode. होल में से पास होके कहां जा रहे, प्लेट के ऊपर जा रहे। लिहाजा ये लोग जा रहे, इसका मतलब ये क्या कर रहे, हरकत कर रहे, दे आर मूविंग, isn't it, they are moving, Moving. that means which energy they are possessing, और कितने जोर से निकल रहे, कितने दम से निकल रहे, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, कैथोड के पोटेंशियल के ऊपर। कैथोड के ऊपर जैसा पोटेंशियल रहेगा वो हिसाब से तेजी से या दम से निकलेंगे वो। दैट मींस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन which has been emitted by the cathode are responsible for the electron, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है या कम है ये डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी पे। एम ए करेक्ट? किसकी काइनेटिक एनर्जी, कैथोड से इमिट होने वाले Electrons. इलेक्ट्रॉन की। तो मैं ऐसे राइट, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, 1/2 mv², 1/2 mv², इट शुड बी इक्वल टू ईवी। ईवी बोले तो क्या, ई बोले तो चार्ज, वी बोले तो पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई किसके ऊपर, किसका बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कम रहेंगी कि ज्यादा रहेंगी, किसके बराबर रहेंगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। यानी कि वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज जनरेटेड बिटवीन कैथोड एंड एनोड, वो इलेक्ट्रिक कैथोड और एनोड के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं हम, ईवी, यानी कि चार्ज इनटू पोटेंशियल, ईवी से डिनोट करते हैं आप उसको। तो वो ईवी किसका किसका मजमुआ है, किसके बराबर है, 1/2 mv²। व्हाट इज 1/2 mv², प्लीज, व्हाट इज 1/2 mv²? Kinetic energy. Kinetic energy, and that's why kinetic energy is equal to EV, where E is what, charge, m is what, mass of the photoelectron। Mass of a क्योंकि जो photoelectron. इलेक्ट्रॉन्स निकले थे अब उनको इसके आगे क्या नाम से पुकारते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रॉन्स।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से इमिट हुए उनकी मास और उनकी चार्ज ये मिला के जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई वो है काइनेटिक एनर्जी के बराबर। लेकिन ये सीधा गए क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन वहां खाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी क्या? नहीं, आपने मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया था। मैग्नेटिक फील्ड जो लगाए उसकी भी स्ट्रेंथ रहेगी, उसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ इख्तियार किया था उन्होंने, है कि नहीं? समझ रहे ना आप? देख रहे हैं पीछे की फिगर क्या करे थे? यहाँ पे जाने के बाद उनको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगाए थे आपने, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उसका भी कुछ तो भी मैग्नेटिक इंडक्शन होगा बी, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बजाय सीधा जाने के कैसा गए, कैसा हो गए? ये टर्न सर्कुलर हो गए। और सर्कुलर होके किसको जाके टकराए? मेटल प्लेट P2 को। यानी कि एट ए टाइम ये इलेक्ट्रॉन जो सी से निकल रहा है इसको किस किस से मुकाबला करना है या किस किस से गुजर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड से भी गुजर रहा जिसकी की कीमत है ईवी, और मैग्नेटिक फील्ड से भी टकरा रहा जिसकी की कीमत का फार्मूला हमारे पास है कितनी? मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते? बीईवी, बीईवी, where B is what? Induction of the magnetic field applied, E is the charge and V is the potential once again, isn't it? और इसकी वजह से उन्होंने कैसा पाथ अख्तियार किया जी? मैग्नेटिक फील्ड लगने के बजाय लगने के बाद वो सीधा गए क्या कैसा गए? मैग्नेटिक फील्ड लगने के बाद इलेक्ट्रॉन कैसा हो गए? सर्कुलर सर्कुलर हो गए। यानी कि उन्होंने कौन से मोशन अख्तियार कर ली? सर्कुलर पाथ। और आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड ने जब सर्कुलर पाथ दी तो सर्कुलर पाथ के वास्ते आपको मालूम है कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगती। आपको अगर फर्स्ट सेमिस्टर का पहला सेमिस्टर याद आ रहा होगा, फर्स्ट ईयर का या दूसरा सेमिस्टर याद आ रहा होगा, तो रेगुलर पीरियड में कई वक्त मैंने बताया था कि कोई भी चीज को अगर ऐसा गोल घूमने का तो उसको क्या लगती? सेंट्रीपिटल फोर्स लगती ना। मैंने एग्जांपल दिया होगा आपको, एक धागा है, धागे के एक सिरे को अगर पत्थर बांध ले, धागा अपने हाथ में पड़ के ऐसा गोल फिराए तो क्यों फिरता वो गोल? इस वास्ते कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स है। कौन देता उसको सेंट्रीपिटल फोर्स? धागे के अंदर जो टेंशन पैदा होता ना, मैंने बोला था अगर टेंशन नहीं रहा तो वो पत्थर आके अपने आंख पे लग जाएगा या सर पे लग जाएगा। है करेक्ट? yes sir That means you can see that this electron which is passing from the cathode to anode due to the magnetic field, it receive certain magnetic force and it get deflected in a circular path towards the plate P2। लिहाजा इसको जो सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स लगी वो कितनी लगी? mv²/r, mv²। अब ये किसका फार्मूला है? यहाँ अपन ने निकाले, आपको याद होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या रहता? mv²/r। वो किसके बराबर है? लगी हुई मैग्नेटिक फील्ड, ये mv², isn't it? लिहाजा मैं ऐसा कर सकता कि यहाँ mv²/r is equal to BeV, B मैग्नेटिक इंडक्शन, E चार्ज, V पोटेंशियल। लिहाजा मैं इसको ऐसा करूंगा, क्या कटा क्या रहा है? v² में से एक v गया, mv²/r into BE, and therefore V is equals to, ऐसा लिख सकता है कि यहाँ पे ये m इधर लेकर आता हूँ, BER/, इधर जो न्यूमरेटर में था वो इधर काय में आ गया? डिनोमिनेटर में आ गया। तो V is equals to BER/m। इक्वेशन 1/2 mv²/ev। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इतना फील्ड उसको मिला जो काइनेटिक एनर्जी आई, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो गोल घुमा, यानी कि ये आया। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम इक्वेट करें यूजिंग दिस इक्वेशन 1 into व्हाट, क्या मिलेगा हमको? 1/2 कर सकता मैं? देखिए आप करके देखिए, 1/2 mv² is equal to ev is equals to v के जगह पे क्या रखूं मैं? अब इक्वेशन 1 में क्या रखूं v के जगह पे प्लीज? BER/m। yes, BER/m अगर मैं रखूं तो यहाँ पर देखिए मैंने ऐसा रखा, क्या कटा क्या रहा? यम ये जो गया है कुछ रहा, क्या बच गया? 1/2 BE2ER/2/m into v। लिहाजा मैंने इसको रीराइट किया, E/m चाहिए था मुझे, लेफ्ट साइड में क्या चाहिए मेरे को? E बोले तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m बोले तो क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E/m इज इक्वल्स टू 2ev अपॉन क्या मिलेगा? अब E/m यहाँ लिया मैंने तो यहाँ ये 2 इधर आया, इधर का ये डिनोमिनेटर का 2 इधर चला गया तो क्या बचा? कहाँ गया? उन्हें न्यूमरेटर में गया 2v। यहाँ का भी न्यूमरेटर में था, यहाँ आते वक्त कहाँ आया? डिनोमिनेटर में 2ev 2v अपॉन B2R2। यानी कि E/m अगर अपने को निकालने का है तो क्या क्या मालूम ना? V पोटेंशियल, किसको दिया हुआ पोटेंशियल? कैथोड को। कहां से मालूम होगा? ये बैटरी के नॉब से पता चलेगा, जैसा वॉल्यूम समझता कितना पोटेंशियल दिए, +2 +3 +4 5 माइनस वॉट एवर इट मीन। मैग्नेटिक इंडक्शन we can determine, radius we can determine, and therefore knowing the V, B and R
value of E by m can be calculated. ये किसका E by m निकला, किसका चार्ज टू मास रेशियो निकला, किसका चार्ज टू मास रेशियो निकला प्लीज? ये फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि कहां से निकले थे, कैथोड से। फोटो इलेक्ट्रॉन्स कब इमिट हुए, जब कौन सा इफेक्ट हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। That means Saint Leonard has calculated the formula of determining charge to mass ratio of the photoelectrons which are emitted during the photoelectric effect, isn't it? Have you understand please? So this equation Yes, E by m for the determination of charge to mass ratio by the Leonard of the photoelectron, the photoelectric effect is most important from the examination point of view. This article may be asked in the examination. Have you understand please? समझ रहे हैं आप? If anybody is having Yes, any sir. question, please tell me. Then I will explain. For today's lecture, only this article is sufficient. Anybody want to ask any question, please? कुछ पूछना चाहते हैं आप? कुछ confusion है क्या? एक बार उर्दू में मैं अगर बता दूं तो क्या है, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर कैथोड है, एनोड है, isn't it? दो मेटल प्लेट P1 P2 है, ग्लास ट्यूब जो इवैक्यूएटेड है, यानी पीवी है एक पर्टिकुलर मेटल से, विंडो सी में से लाइट जाकर सी के ऊपर टकरा रही, सी को आपने पहले पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, तब उसने कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं निकाला, लेकिन पॉजिटिव पोटेंशियल आप कम कम करते गए, एक मखसूस पोटेंशियल यानी कि +2 के ऊपर सी ने अपने पास से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू किए। वो इलेक्ट्रॉन निकले हुए सी से निकल के कहां पर गए, एनोड के तरफ गए, एनोड को होल में से थोड़े से इलेक्ट्रॉन P1 के तरफ गए, जब P1 के तरफ गए तो P1 के पास यहाँ उसका मुकाबला उसका सामना किससे हुआ, मैग्नेटिक फील्ड से हुआ। ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बजाय P1 को जाने के इलेक्ट्रॉन गेट डिफ्लेक्टेड इन ए सर्कुलर पाथ टुवर्ड द प्लेट P2, और जब प्लेट P2 पर आए तो प्लेट P2 पे पोटेंशियल बढ़ने लगा, और जब पोटेंशियल बढ़ने लगा तो इनके घूमने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा हुआ। वो इलेक्ट्रिक करंट किसने दिखाया, इलेक्ट्रोमीटर E2 ने दिखाया। E2। अब ये इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर जो करंट दिख रहा है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट दिख रहा है, इसकी कीमत कितनी है, ये कम है या ज्यादा है, चार्ज टू मास रेशियो कितना है, ये देखने के वास्ते एक फार्मूला है कि भाई ये सी से निकल के, क्योंकि पोटेंशियल ये जो करंट है इसका इन्हिसार पूरा के पूरा किसके ऊपर है, यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रिक करंट कितना दिखेगा, इसका सारा दारोमदार किसके ऊपर है, सी से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी, चार्ज पार्टिकल की क्या काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, ये डिसाइड करेंगे ना। तो ये देखने के लिए, चार्ज टू मास रेशियो देखने के लिए ये फार्मूला ड्राइव किया गया है। Have you got please? Tahrim, are you getting me please? Yes, So sir. with this one, E by m can be calculated by the Reynolds method. Thank you. Have a nice time ahead. If you want, anybody want to ask any question, please. पूछना चाहते हैं अभी भी कुछ पूछना है please before concluding No, the sir. lecture. All of you have got? सबके समझ में आया कि बहुत जल्दी हो गया? नहीं सर, आगे समझ में। आ गया समझ में? So may I stop here today? Thank Yes, you. sir. Thank you for joining me. For our next period, we will meet inshallah very soon in a gap of 3 to 4 days, because continuously I am not conducting the period. I am taking the gap. So we shall stop here today. Remaining thing, the further article of this particular chapter, we'll see in the next period. Thank you. Have a nice time ahead.